हमारा ठीक से आप नहीं कर सकेंगे। हाँ ठीक है। Yes, pranam Swamiji, pranams ओके all हाँ brothers and sisters. This the great master Lila Prasanga was written by no less a person than Swami Sardananda, who was very close disciple of uh, Bhavan Sri Ramakrishna. We will now do the summary of part 3, chapter 1, Sri Ramakrishna in Bhavamukha. The author begins by saying that after the 12 years of extraordinary austerities practiced by the master, he was bidden by the mother of the universe to remain in Bhavamukha. It is difficult to understand the meaning of Bhavamukha. Swami Vivekananda once told a friend that basketfuls of philosophical books can be written on each single sentence spoken by the master, and one went on explaining for 3 days his utterance of parable of the elephant god and the mouth god, and how it was a wonderful solution to the controversy over doctrine of free will and of personal effort and God's will. This is true of all incarnations who spoke in simple language and short parables the truths they had to teach. The simple words and uh, plain similes are full of meaning and power. And as we go on thinking, we can comprehend in one's heart their deep significance. Master's are profound. The example of Girish Ghosh, who after meeting the master a few times, offered himself completely to him and asked what he should do from then on. Master asked Girish to continue what he was doing, but to remember and think of him every morning and evening. Girish thought and and was sad and was sad because he had irregular habits and could not easily agree, but could not express his thoughts. Seeing Girish silent, Master asked him once before taking food and before going to bed. Girish remained silent, thinking of his irregular food habits and sleep. Then Master asked Girish to give him his power of attorney. Girish gladly agreed, but could not realize that he had put a noose of love around his neck. All his thoughts vanished, and he felt the endless grace of Sri Ramakrishna. The master taught Girish in accordance with the latter's moods. In one instance, when Girish said, I will do it, master remonstrated with him and said that he should say, I shall do it if God so wills. Thus, gradually, Girish understood the significance of giving the power of attorney. It is only incarnations who can accept the power of attorney. The master had a vision in connection with accepting the power of attorney when he was in Champukur and said that mother showed him that the sores in his throat was the result of taking upon himself the evil actions of Girish and other devotees. He also cured a person of leukoderma out of his compassion. It is not easy to give the power of attorney, which cannot be given in all circumstances. It can be given only when the mind realizes the state in which it is possible and the divine Lord accepts it. But the mind can be deceptive. If the power of attorney is properly given, one cannot but constantly dwell upon his compassion in one's heart of hearts. The author says that even after giving the power of attorney, one does not feel any joy in calling on God, then one should know that power of attorney has not been given properly, and narrates the story of a Brahmin killing a cow and attributing the act to Indra. Once the sadhaka's mind develops, a deeper understanding of the master's words dawn. With the passage of time, a devotee finds through the master's grace deeper meanings in his words. Master is to say that understanding comes at the right time.
The author then proceeds to explain Bhavamukha state of the matter through an examples of how how he consoled and guided devotees and disciples through the difficult times. Master would say it is necessary to stick to sadhana, his service, worship, and surrender. That is humility. Everything will come right if one has faith and adheres to these things. His direct vision is certain. But once, if one gives these up, there stops one's progress. And the master narrates the parable of a man who gave up his job when he found he had a savings of rupees 1,000 and the consequent difficulties and miseries he faced. Master's advice was to give up lukewarm devotion. The author narrates that he and other monastic disciples felt that the master was an embodiment of spiritual moods and used to have bodily changes with the change of moods. In Nirvikalpa Samadhi, the master's eye consciousness disappeared completely, and along with it, his pulse, heartbeat, etc., also stopped. Master was examined by various specialist doctors when he was in this mood, which astounded them. In Sakhi Bhava practice, the master meditated continually on himself as a woman servant of Sri Krishna and became completely identified with womanly behavior. The author narrates the master's power of knowing all the moods in all persons, his power of roaming everywhere in the realm of ideas, understanding all ideas, grasping the inner thoughts and sentiments, and progress of spiritual aspirants, path adopted by them, and progress made till then, and gave appropriate description then and there. This was his rule in everything. The author then gives the example of Mani Mohan's grief over the death of his son, of how the master consoled him by singing, which generated waves of spirituality palpably felt by all present. Master said, "It is God alone who is our own. Uh, We offer our heart and life to Him. May He bestow His compassion on us and reveal Himself to us." Then the master described his feelings at the time and after his nephew Akshay's death. Another example of a different mood of master's words on how to get rid of lust, and the third example of his advice to Swami Yogananda on this matter. The fourth example given by the author is that Mani Mohan's relative who came to the master and told him about her mental restlessness. And the master advised her to think that she was serving God while serving her young nephew, who was the cause of her mental restlessness. The author gives an example. The, the author gives examples of the master's power of knowing all kinds of mental states of women and the reason why women behave freely in the presence of the master. The master bestowed equal grace on women and mimicked the gestures of women. The author states that the moods of both men and women coexisted in the master. All these moods and the power of understanding of the master is because he dwelt in the state of Bhavamukha. The master was the embodiment of infinite moods because he always dwelt in the Bhavamukha according to the command of the Divine Mother. This ends the first part. The second part, chapter 18, section 3, the master's self revelation and the bestowal of freedom from fear. The master was in Kosipur Garden House and was feeling much better under Dr. Rajendra's treatment. On the 1st of January 1886, the master felt much better and expressed a desire to walk in the garden for some time. As it was a holiday,
Most of the household devotees were present after midday. When the master came to the middle of the path leading to the gate, he saw Girish, Ram, Anil, and others sitting under the trees on the west side. All of a sudden, the master spoke to Girish and said, Girish, I find, say to one and all everywhere so many things about me. What have you seen and understood that you do so? Girish knelt down near the master's feet and in a choked voice said, what more can I say of him whose greatness Vyasa and Valmiki could not find words to express? The master was charmed and said, what more shall I say to you? May you all be blessed with spiritual awakening. Filled with love and compassion, the master then entered into Bhava Samadhi. All present said Jai Ramakrishna and felt that only out of sympathy for the plight, overflowing with compassion, an extraordinary divine being came down from heaven and called to them affectionately to him for giving protection. All who were touched and blessed by the Master were unable to utter a word and were in a state of bliss for several minutes. The author answers the question if the Master acted as the wish fulfilling tree. The author says that it is more reasonable to call this state of the Master as his self revelation or the bestowal of freedom from fear on all devotees by revealing himself. The Kalpataru gives to all whatever good or bad they ask for. However, the master did not do that. Instead, he made it clear in this event the fact of his being a God man, bestowing protection against and freedom from fear on all without any discrimination. The author then narrates the case of Harachandra Das, who was present that day. And as he bowed down to the master, the latter in ecstasy placed his lotus foot on Haran's head, which master rarely did. The author gives the names of those present on that hallowed day. The direct disciples of the master, though present, did not go downstairs as they were cleaning and reading master's room and bed. The author asked a few of those present as to what they felt at the master's touch, and one devotee, Vaikunta, said that he saw master's gracious smile in everything and said he then understood why Arjuna asked Sri Krishna to withdraw his vision of the universal form. Further, he said he understood the extent of desirelessness the mind has to develop to get the capacity to remain in that high state and prayed master to bring it to an end as he could not contain the high spiritual state so bestowed on him. Vaikuntha says he felt blessed and amazed at the sudden appearance of the master's gracious vision a few times every day. And this is uh, what where we end and the understanding of Kalpataru Divas and that master actually fulfilled every, gave everyone protection, not that he just uh, fulfilled everyone's wishes. Thank you, Okay. Pranam Swamiji. Thank Okay, you. well done. Well done, well done. Thank you. Thank you. Pretty good, pretty good. Nicely Thank complete summary has been. Very good. Now, shall we start question? Yes. Yes. So, first of all, I asked Shivani, there are many people today, they have gone to some other places. कई जगह पे कल्पतरु दिवस का आज 1 जनवरी का प्रोग्राम हो रहा है, तो आज केवल 12 लोग ज्वाइन किए हैं, 12-14 लोग ज्वाइन किए हैं और बाकी लोग इधर उधर गए हैं, कुछ लोग और भी जाना चाहते हैं यहाँ पे अटेंड करके। तो इसलिए सबसे पहले मैं शिवानी से कहता हूँ अपना प्रश्न करें। ज्वाइन तो किया है लेकिन अभी नहीं दिख रही है।
अच्छा, शिवानी है ने ज्वाइन तो किया है? हाँ, पर हाँ अभी देख नहीं रही है। नहीं है? नहीं है। चलो रीता, रीता आ जाओ। ओ यस, रीता भी नहीं क्या? है। अनम्यूट करना है उनको। अबे अपने रीता ने ईतू 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 घोष, इतु जी भी आई तो थी। हाँ ईतू घोष ज्वाइन करो। हाँ, नहीं, देख नहीं रही। प्रणाम महाराज हाँ हाँ भाई, तुम्हारे क्वेश्चंस करो। जी। हाँ, एक सेकंड पहले पहले अभी करना बात वाले जो पहले वाले है ना, अर्लियर संडेज के, उसको बाद में करना। पहले जी अभी का जी कर लो आज के। जी जी। मेरा पहला प्रश्न है, द मास्टर यूज्ड टू से इन दिस कनेक्शन, man finishes the experiences of 10 lives in one by their by their grace. So my question is, does this mean that man has saved from 10 more births of man is saved? Does the grace comes by strong desire? नहीं नहीं, ऐसा है कि भगवान की कृपा से, अवतार की कृपा से हमारे जो अगले कई 40-50 जन्म होने वाले थे, तो यहाँ उन्होंने कहा है कि वो 10 जन्म कम हो जाते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा उनकी कृपा से। वो अच्छा कर्म जो है, कर्म को काट देते हैं। अच्छा यानी हमारे जो कर्म है ना, पहले जन्म जन्मांतर के कर्म, उसके कारण हमको मनुष्य जन्म मिला। जी और उसके जी बाद में फिर और भी कुछ कर्म फले हुए हैं, तो और भी अगला का जन्म कुछ मिलने वाला है। जी अच्छा बुरा क्या होगा पता नहीं, कितने जन्म और लगेंगे। जी एक ही जन्म में सारे कर्म नहीं कट जाते। तो ये जो है महापुरुष लोग, एक अवतारी पुरुष, इनको सब काट देते हैं, यानी कर्म जो काट देते हैं, तो हमारे जन्म जो है वो 50 जन्म कम होने हो था, तो जाते हैं। 40 ही जन्म होंगे 10 जन्म तक। जी जी। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हाँ, शैल आई डू फ्रॉम द टेक्स्ट, व्हाट शैल आई डू व्हेन ही इज मेकिंग मी एक्ट दस, व्हाई डज ही नॉट चेंज माय माइंड? सो माय क्वेश्चन इज, what is the explanation here? It is said that the future is already predestined. It means our decisions are also predestined. यस। Predestined. देखो ये ऐसा है कि ये प्रीडिस्टिन्ड के बारे में जो बात करते हैं ना, ये ऐसा है कि यानी यहाँ पे जो क्या किया है, ये पावर ऑफ एटर्नी के बारे में कहा है जी ना। जी डोंट, ऐसा है कि ऐसा मत समझो। पावर ऑफ एटर्नी देना जो ना, ये संदर्भ में पावर ऑफ एटर्नी के संबंध में कहा है। इसमें ये कहा है कि मैंने तो पावर ऑफ एटर्नी दे दिया है, भगवान जी मेरे को बदलते क्यों नहीं, यही प्रश्न है ना जी तुम्हारा, है ना? जी हाँ जी, ये बात है। अच्छा, अब मतलब भगवान नहीं नहीं सब कुछ पाओगा नहीं। देखो हाँ यानी हमारे को जो जन्म मिलता है पूर्व जन्म के कारण होता है। जी अब इसके इस जन्म में हमारे कष्ट भोग रहे हैं, भगवान को हमने पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, तब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे क्या? हमारा ये देखो, गिरीश चंद्र घोष ने पावर ऑफ अटर्नी दिया था, आप जी क्या समझते वो आसान था क्या? हाँ, वो तो बहुत ही मालूम है मुश्किल बात आपको है। कितना उसने कष्ट खोजा था? जी 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 उनकी जी। पत्नी की मृत्यु हो गई थी, पुत्र की मृत्यु हो गई थी, और क्या हम्म, क्या सब हुआ था। और कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं जी पहले होता तो कुछ प्रयत्न करता उसको दूर करने का। अब तो मैंने जी पावर ऑफ अटर्नी दे दिया है, पूर्ण रूप से भगवान को सब समर्पित कर दिया है, तो मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता। यानी उसकी हालत और भी भयानक हो गई थी जी जी। ना। तो इसलिए तुम्हारा पा, प्रश्न यानी नहीं, मैं ये भी पूछ डोंट रही हूँ डिसीव कि यू, अपने क्या है हाँ कि प्रीडेस्टिनेशन क्या है? तुम फिर से प्रश्न करो तो ठीक से। हाँ जी, ये है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी तो हुआ, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, सब ठीक किया हुआ है भगवान का। तो जो कुछ भी गलत काम करते हैं या सही काम करते हैं,
तो ऐसा है कि ये भगवान की इच्छा से ही हो रही है, हमारी इच्छा से नहीं? ये भगवान की इच्छा से, अगर तुम सचमुच करते हो क्या, सचमुच करते हो क्या, अगर कोई सचमुच ये सोचे ना, जी। तो वो तो जीवन मुक्त हो गया। वही तो बात कर रहा हूँ मैं। अगर उसको ओ, ये समझता है कि भगवान ही करा रहे हैं, अच्छा हाँ, मेरे अच्छा हृदय में बैठ के भगवान करा रहे हैं, अगर कोई ठीक ठीक समझे, तो वो तो जीवन मुक्त हो गया। अच्छा ठाकुर वो कहते थे ना, कहानी कहते थे अच्छा। ना, वो जुलाहे की जुलाहे ना, तो क्या थी इसका है वो, जी जी, वो हाँ, राम की उस कृपा से, राम राम की की कृपा इच्छा से। से, राम की इच्छा से, तो राम की इच्छा से मैं ये कर रहा था। जी चोर आए, राम की इच्छा से मुझे पकड़ के ले गए, और फिर जी राम की जी। इच्छा से पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। राम की इच्छा से मैं अब जज साहब के सामने आया हूँ। तो जी ऐसा राम की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, ऐसे कितने कौन कर सकता है भाई? यही बोल अच्छा रहा चाह रहा हूँ। तो या अच्छा जी, इसको प्री इसका डेस्टिनेशन मतलब कहो या राम की इच्छा से जी, कहो, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा मतलब ये सोचना कि हर काम ठाकुर ही करा रहे हैं, ये अच्छा है कि ये ये सोचना, अच्छा है ना, लेकिन ये मुश्किल है। सबसे ऊंची अच्छा, स्थिति है, करना बहुत कठिन है। जी जी या जी फिर देखो मैं प्री डेस्टिनेशन जो है, जी या तो कहो, दो दो बातें से प्री डेस्टिनेशन दो कारण से हो सकता है। एक जी तो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मैं प्रीडेस्टिन्ड हुआ, जी यानी मेरे को मानव शरीर मिला है, प्रत्येक क्षत्रिय शरीर मिला है, मानव मेल बॉडी नहीं मिला है, पुरुष शरीर मिला है, और पढ़ाई लिखाई हुई है। ये सब जो हुआ है मेरे पूर्व जन्म का कारण हुआ, या फिर भगवान के कारण हुआ, या जी प्रीडेस्टिनेशन, जो कुछ भी कहो। अब जी जी इसके बाद में मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाना भी प्री डेस्टिनेशन। तो क्या हाथ उठा के खाने में, या सामने मेरे पास बहुत सारी प्लेट्स रखी हैं, उसमें से मैं चॉइस कर रहा हूँ, लड्डू नहीं खाऊंगा, मैं जलेबी खाऊंगा, तो ये क्या, अब ये भी प्री डेस्टिन्ड है, या खुद में कर रहा हूँ? देयर इज ए हाँ चॉइस आल्सो। हाँ हाँ जी तो जी फिर जी। फ्री चॉइस तो है ही। हम्म। ये जानवरों में ठीक। होता है कि जानवरों हम्म। में केवल संस्कार होते हैं पुराने जन्म के, उसके जी साथ करते हैं। मानव को जन्म तो मिला है, लेकिन उसके बाद में उसको बहुत सारा इच्छा, सेल्फ, अपनी स्वयं की इच्छा भी तो है मानव के पास, ये सोचो जी तो। जी जी। इसलिए इसको कभी हम्म कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हम्म। मैं तो इसमें प्री डेस्टिनेशन और भगवत इच्छा में मानता ही नहीं। मैं अपनी, अरे भाई, हम्म। सुबह शाम मैं अपनी इच्छा से सब कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। सुबह शाम मैं खाना पीना खा रहा हूँ, मेरे पास सामने चॉइस आई है, तो मैं रोटी ले रहा हूँ, या फिर गुड़ ले रहा हूँ, साथ में नहीं ले रहा हूँ, ये मैं मेरी इच्छा से कर रहा हूँ। सब कुछ हम अपनी इच्छा से करेंगे और बोलेंगे प्री डेस्टिनेशन, प्री डेस्टिनेशन। जी ये सब मेरे को नहीं समझता। जी हाँ, ठीक है जी। अगर सचमुच भगवान की इच्छा हो ना, तो कोई आदमी बेताल, पैर पैर बेताल नहीं पड़ेगा। पर, हाँ जी। हाँ, बहुत ऊंची हम्म अवस्था है। हम्म। जी हाँ। मेरा तीसरा प्रश्न है, हम्म। uh, uh, from the text, why gradually one should not practice such lukewarm devotion? Can half-hearted devotion help one to realize him? So in my question is, in the beginning a devotee cannot plunge deep, so real devotion is not so easy as we have come to know. So what is the solution? देखो ठाकुर क्या बोलते हैं, देखो मैंने जो कह दिया है वो कह दिया। जी जितना लेजा मुड़ा बात दिए जाओ, करते हो करते पारो, तुम सिर और पैर हटा के जो जी कुछ मैंने कहा है वो करो बस। और वचनामृत पढ़िए, कितना सुबह शाम वचनामृत पढ़ते हैं, हम कितना फॉलो करते हैं बोलो। हम्म। तो वो हम तो ल्यूकवार्म डिवोशन ही है हमारा। जी जी जी। वो व्याकुलता जो है ना, हम्म। वो बिरले लोगों में होती है। होती है। यानी वो ठाकुर ने बताया ना कि वो आदमी गुरु ले जाके मनुष्य को डुबो दिया पानी गंगा में। में डुबा देता है, व्याकुल होगा। हम्म ऐसी व्याकुलता के बिना कुछ नहीं होता। तो क्या करोगे? हम्म। जैसा चलते हो चलने दो, जी लेकिन अपने आप को भक्त मत मानना, याद रखना।
जी जी हाँ, ये इसको भक्ति नहीं कहते हैं, तो बनते बनते बने जाए, किसी तरह चल रहा है तो चलने दो। हाँ, जी हम बड़े अपने आप को भगत समझते हैं, कोई भक्ति नहीं है। कभी जी तो व्याकुलता होती नहीं, कभी आंखों में आंसू आते नहीं है, भक्त होगा। ठीक है, ओके, ओके। जी जी। और मेरा अच्छा, पिछले मतलब हाँ बार हाँ का हाँ, प्रश्न करो। हाँ, उसका है, when the power that attracts the light of religion in the receiving soul is full and strong. So this is from the text. My question is how to get the slightest indication that the soul is getting ready to receive even a faint light. ये तुम्हारा, I could understand the वो, you already got a faint light, that's why you are attracted to religion. You are हाँ. doing japa, you have got diksha, you are attending the meetings, you like to read, like to discuss these things. मतलब you have Okay. got a slight interest, you already Yes, got. yes. Yes, तो फिर yes. क्या क्वेश्चन है इसमें? जी 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 हाँ, ठीक है ठीक। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ रीडिंग बुक्स and hearing religious talks the young children can develop at least a little urge for developing the fervor. ऐसा है कि बच्चों को स्टोरी बुक्स दो, रिलीजियस अच्छा स्टोरीज दो, जी रामायण महाभारत की स्टोरीज दो, जी उनको फेस्टिवल्स में ले जाओ, जिन्हें जी फेस्टिवल्स में है उसमें ले जाओ। और ये प्रहलाद की, ध्रुव की, रामायण की, महाभारत की कहानियां सुनाओ। मैगजीन से जी आजकल तो कॉमिक्स मिलते हैं ना, ये सब के कहानी पिक्टोरियल्स मिलते हैं बहुत सारे, जी इनके द्वारा बच्चे समझेंगे। दैट इज द वे। ऐसे अच्छा और कुछ को प्रवचन देने से नहीं होगा। हाँ हाँ, और उनको ठीक है रिचुअल्स कराओ, मंदिर में बीच बीच में ले जाओ, तो ये मंदिर एटसेट्रा ये अट्रैक्ट करते हैं ना। हम्म तो बच्चों को तो साउंड होना चाहिए, साउंड और लाइट होना चाहिए। जितना ज्यादा साउंड लाइट होगा, कहानियां होंगी, कॉमिक्स होंगे। तो आजकल तो है ना वो अमर चित्र कथा निकाली ना, मालूम है ना तुमको? जी हाँ, कितनी सारी जी सब कहानियां हैं, रिलीजियस स्टोरीज हैं, उनके द्वारा संस्कार पड़ता है बच्चों में। जी जी। ठीक है। और एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन आज सुबह भेजा तुमने, क्या था वो? जी वो है, that which makes a race is its religion. So the Orient has been the cradle of the human race for ages. So इसका हाँ, मतलब स्वामी विवेकानंद के explanation. अनुसार ये है कि जो कोई रेस है ना, जो रिलीजन जी रेस जो है वो रिलीजन के हपारा होता है। उस पोर्शन को तुम पढ़ना, मैंने फिर से पढ़ा उसको। लोग जी कहते हैं अलग अलग वस्तुओं से, खान पीन से या व्यवहार से कोई रेस बनती है। स्वामी जी कहते हैं रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिलीजन के माध्यम से रेस, एक जो बनता रेस है। जो है वो बनती है। अच्छा, और दूसरा वो बोलते हैं, दूसरा उन्होंने क्या कहा, बोला the Orient has been the cradle of the human हाँ, race for ages. ओरिएंट यानी ये ईस्टर्न साइड, ये ईस्ट के डिस्कस लोग। होता है। जी ईस्ट में जी पिछली बार डिस्कस हुआ था ये। ईस्ट जी जो जी है यानी चाइना, इंडिया इत्यादि, यहीं से सारी संस्कृति बढ़ी है। बड़ी बाकी है। वो लोग तो जंगली थे। जब भारत में संस्कृति थी तब ये वेस्ट के लोग जो थे वो जंगली थे। जी ठीक है अच्छा, ठीक है, जी। चलो। हाँ प्रणाम शिवानी आ महाराज। गया है। शिवानी appeared or not? जी महाराज प्रणाम। हाँ भाई बोलो, चलो। हाँ महाराज, पेज नंबर 477 होल पेज है ये। It is true to take refuge in the holy feet will save us from the mentioned worries like death of a loved ones. But it is said that at the time of this period of grief, one should pay condolences also. So is it true? Yes, yes, why should not? condolence क्यों नहीं करना? इट इज आवर ड्यूटी। वदर हम लोग फील्ड वाले नहीं भी करते, थोड़ा तो कष्ट होता है, थोड़ा जी। प्रेम से बात करोगे तो हो जाएगा। और ठाकुर जैसा कंडोलेंस बात दूसरी है। ठाकुर ने तो वो मनोहन का जो पुत्र मर गया था तो वो उन्होंने हृदय से अनुभव कर दिया था, वो बात जी। दूसरी है। वो हम इतना गहरा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो उसको कर सकते हैं ना। नो डिफिकल्टी अबाउट इट। कंडोलेंस करने में कोई नुकसान नहीं। ठीक है हाँ। महाराज, सेकंड क्वेश्चन है,
Why then it is popular Kalpataru Day is a wish fulfillment day. On page number 1269, paragraph is the Kalpataru, it is said that gives to all whatever good or bad they ask ठीक for. है, But the master did not do so. He made clear through that event the fact of his being a godman and of his bestowal of protection and freedom from fear for all without ठीक है, any ठीक। discrimination. तो उसको तुम्हारा ये कहना है कि कल्पतरु क्यों कहते हैं? जी उसको तो वो ऐसा है कि वो था ना कल्पतरु तो है, तो कुछ के कहानी आती है ना कि एक जंगल में आदमी गया और हाँ। आराम से लेट गए, वहां अंधेरा था, वो रात हो गई, तो उसने कहा अरे कोई मेरे को वो मिल जावे, एक बिस्तर मिल जाए तो अच्छी तरह सोऊंगा। तो वो कल्पतरु के नीचे बैठा हुआ था, बिस्तर आ गया, सो गया। तो रात हो गई, उठा तो करे बाप रे कहीं शेर ना आ जावे, तो शेर आ गया। तो भगवान ये शेर मुझे खा न जावे, तो खा गया। तो कल्पतरु तो जो है, जो भी मन में उठा उसको अच्छा बुरा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे जो हुआ है, ठाकुर जो है वो विस्तार कृपा की है और संरक्षण प्रदान किया है, अभय प्रदान किया उन्होंने, अभय प्रदान किया है। तो इसलिए उसको कल्पतरु नहीं कहते हैं। तो कल्पतरु नाम कैसे पड़ा? ये जो मोस्ट प्रोबेबली अपने मास्टर, अपने ये राम बाबू रामचंद्र दत्त ने उसको कल्पतरु ने नाम दे दिया है। अब क्या करो? अच्छा, अब ये प्रश्न ये है कि उसको क्या नाम भी क्या देवे। अच्छा सोचो तो सही, इसको अभय कोई दिवस। नाम तो कल्पतरु ने नाम भी तो अच्छा ही है। हाँ, नाम तो अच्छा है। तो फिर मतलब मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि इस दिन यही मन में आता है कि आज जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। नहीं वही तो बात है कि सावधान रहना जी। हाँ, वो शेर भी आ जाएगा और खा भी जाएगा। नहीं ठाकुर नहीं देंगे जी। ठाकुर से उल्टा पुल्टा मांगोगे तो नहीं देंगे ठाकुर। पर बहुत कुछ दे देते हैं वो। अब माँ जैसे है, तो माँ से तुम कुछ खराब चीज मांगो तो माँ नहीं देगी, है ना? जी। माँ बिल्कुल नहीं देगी, चाहे कितना भी मांगो तुम, माँ मेरे को ये दो। माँ जानती है कि इसके कारण इसको दुख होगा। खाने को भी नहीं देगी, खिलौना भी ऐसा नहीं देगी जिससे उसको दुख होगा। तो मांगने में क्या नुकसान है? माँ जो है वह कल्पतरु है, लेकिन वो सिलेक्टिव कल्पतरु है, ये माँ। तो रहने दो ना, नाम क्या नुकसान है? ठीक है, आपको आपत्ति क्यों नाम के ऊपर? थैंक यू महाराज जी। प्रणाम। हाँ महाराज जी, ये कह सकते हैं कि सब जो ठाकुर के पास आए थे उनके मन में ठाकुर को पाने की कहीं ना कहीं इच्छा रही होगी, और वो अलग अलग लेवल्स पे थे, तो ठाकुर ने उसके अनुसार उनको चैतन्य दिया। उसी जिस दिशा में थे उस दिशा में उन्होंने ले जा दिया। तो चैतन्य ठाकुर तो चैतन्य करने वाले हैं, उनको कल्पतरु थोड़ी देर बोलेंगे। दैट इज द पॉइंट। तो हर एक कल्पतरु से भी श्रेष्ठ है, कल्पतरु से भी श्रेष्ठ है। जी चलो मजुमदार पूछो। सुबीर। हाँ महाराज, अभी पूछता हूँ। महाराज, पहला सवाल है, why master's self-revelation is also a bestowal of freedom from fear? Freedom from fear occurs in an Advait state. So how was this experience of devotees a boon of freedom from fear? अभय क्यों कहते हैं महाराज इसको? अच्छा, आप ये बताइए कि द्वैत में फ्रीडम नहीं हो सकती है क्या? आपने ये बड़ा सिद्धांत बनाया कि अद्वैत में ही फ्रीडम होती है। द्वितीयात् वै भयम भवति। ओ यार, मैं बताता हूँ ना, द्वितीयात् वै भयम भवति। जी इसलिए बोला है वो भय रहित है। ये आपका वेदांत बोल रहे हैं। लेकिन हम बताइए, एक यानी अगर किसी कोई विष्णु का भक्त है और उसको ये विश्वास है कि विष्णु मेरी रक्षा करेंगे, तो वो निर्भय नहीं होता है क्या? जी बिल्कुल। फिर माँ मेरे पास है, मैं क्या, माँ गुरु अवतार
भगवान अगर मेरे पास में है तो मेरे किसका भय है? जी जी बिल्कुल। फिर तो क्यों ये मान के चलते हो कि अद्वैत में ही भय होता है, अभय होता है? गुरु अवतार ईश्वर हमारे यदि पास में जी। है, इतना विश्वास है तो अभय होगा। ठीक है, जी महाराज, इसी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाह रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल इसमें महाराज बिल्कुल जी, यही है। हाँ जी महाराज ठीक है, समझ गया। ठीक है। लेकिन हाँ। इसको अब यहाँ पे इसको अभय प्रदान दिवस भी क्यों बोलते हैं महाराज? वो ठाकुर ने उनको ने किया, तो जिन जो जो आते थे उनको उन्होंने कृपा की। और अभय जी ठीक है। उनको सब लोगों को लगा कि अरे भाई ठाकुर हमारे हैं, अवतार हैं, हमारे ऊपर कृपा करने वाले हैं, अब में से किसकी हाँ चिंता है? यानी एक जी 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 इंटीमेट, मोर इंटीमेट रिलेशनशिप विद ठाकुर हुआ ना। जी जी, उससे एक अभय हाँ। प्रदान हुआ। ठीक है, हाँ, उनको ये लगा कि समझ। भाई ठाकुर तो शक्तिशाली महान अवतार है, भगवान है, शक्तिशाली हैं, बस हमको क्या चाहिए? जी महाराज, right? राइट महाराज। चल। अच्छा महाराज जी, ये बताएं, दूसरा सवाल है, डिड गिरीश घोष स्टॉप कमिटिंग सिंस आफ्टर ही गेव श्री श्री ठाकुर द पावर ऑफ अटर्नी? यस, कुछ समय तक संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद ये सिचुएशन हो गई थी। जी वो शराब की बोतल हो तो शराब हाथ उठा भी नहीं पाते थे उसको पीने के लिए। जी इच्छा हो रही है तो भी शरीर नहीं चलता था। जी ऐसा उनका दृष्टांत है, उनकी लाइफ उनको पढ़ो तो उनको पता चलेगा। यानी जी जी वो सेक्स की बात तो छोड़ दीजिए, कोई भी बुरा काम करना हो तो उनका हाथ ही नहीं उठता था। शराब की बोतल पड़ी है, उतना शराबी है ना, वो तो कहते थे कि इतना शराब पिया है कि बोतल अगर रखूं तो ऊपर तक चला जाएगा। वो हाँ ये है कि शराब की बोतल पड़ी हुई है, हाथ उनका उठता नहीं था, जाता ही नहीं था उसके पास में। यानी मन जी से जी त्याग किया हो तो भी, शरीर भी त्याग दिया था बाबा, शरीर से भी चला गया। हाँ। जी महाराज। उसको ठीक से और वैसा महाराज करो ना, लास्ट, तुम उसको सुनो, मैंने इसमें लिखा है, हाँ मैंने अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखा है, तुमको बोलना है कि तुम इसको पढ़ के इसका जवाब तुम खुद देना। ठीक है महाराज, ठीक गिरीश है। की लाइफ में हाँ पढ़ लेना। जी महाराज तीसरा जी। क्वेश्चन। हाँ। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हम्म। मे वी ऑन आवर पार्ट, हम अपनी तरफ से, कैन वी इमेजिन that we have given power of attorney to Thakur and then try to behave accordingly? I know it is very difficult, but we can make an attempt and that way stop ourselves from committing ourselves for any action. And whenever we suffer, we can imagine that somewhere it is for our own benefit. क्या हम इस तरह से चल सकते हैं महाराज? देखो भाई, ये पावर ऑफ अटॉर्नी बाबा, ये मेरे को तो समझ में नहीं आता। देखो जी मैं बताता हूँ तुमको, जी हम लोगों ने, हम तो संन्यास लिया है ना, जी तो संन्यास में तो हमने मंत्र पढ़ के ठाकुर को समर्पित सब कुछ कर दिया। जी इतः पूर्वम देह प्राण बुद्धि धर्माधिकार तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यानी जगत में अभी तक मैंने जो कुछ किया है, शरीर मन प्राण से जो कुछ किया है, सब प्रभु का, श्री भगवान श्री राम कृष्ण को, ब्रह्म को समर्पित करता हूँ। हम लोग तो ये जी समर्पण करते हैं, उसके बाद में संन्यास होता है। तो जी ये समर्पण हो गया, उसके बाद क्या ये समझते हो कि जी हमारी क्या 100% एकदम क्या पवित्र हो जाते हैं? उसके बाद में भी तो गलतियां होती रहती हैं। जी महाराज। तो फिर यानी इट नहीं, इज मैं, नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। समर्पण की बात करना बहुत इजी है, नहीं है। प्रत्येक क्षण ये जैसे गिरीश का होता था कि वो एक हाईएस्ट लेवल है। यानी जी महाराज। गिरीश को तो ये हमेशा लग रहा था कि ठाकुर मुझे चला रहे हैं, एक क्षण भी वो भूल नहीं सकते थे। लेकिन हम तो भूल जाते हैं ना, हम सन्यासी होते हुए भी। जी 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 तो it is not merely, the point is not merely a subconscious संकल्प, कॉन्शियस जी लेवल पे कांस्टेंट रिमेम्बरेंस के बिना शरणागति नहीं होती बाबा, जी। याद नहीं, रखना। मैं हाईएस्ट लेवल की बात में नहीं कर रहा हूं, मैं छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर कहीं जाना हो
तो हाँ। किसी ने पूछा तुम आओगे, तो हम कहते कि हाँ कोशिश करूंगा। जैसे ठाकुर ने गिरीश जी को समझाया कि नेवर से आई विल डू, से इफ हाँ। गॉड विल्स आई विल डू। तो लाइक दैट, ये प्रैक्टिस जो मैं कह रहा हूँ, You तो ये can मेरी do it, थोड़ी सी है आदत ना? बनी। Point is that ये बोलना तो हुआ, लेकिन कांस्टेंट रिमेम्बरेंस के बिना नहीं होता। ये भाव इतना गहरा होना चाहिए कि बस प्रभु मुझे करा रहे हैं। जी जी। अब देखिए हमारा क्या है, मैं यही बारे में सोच रहा था कि हम तो वी हैव बिकम रामकृष्णाइट्स, यानी 50 साल जी। से रामकृष्ण मिशन में जने सब मिला के हो रहा है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो कंप्लीटली रामकृष्णाइट हो गया है ना, जी लेकिन कॉन्शियस लेवल में तो वो लेवल नहीं आया है। यानी जी हम कर रहे हैं तो हम तो अब जब रामकृष्ण मिशन के हो गए हैं, अब जो कर रहे हैं अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, हमारी इच्छा और रामकृष्ण की इच्छा तो एक ही हो गई है। जी। एंड येट आई फील दैट जो भी करते समय जब तक कॉन्स्टेंटली श्री रामकृष्ण का स्मरण न होवे ना, तब तक 100% हाँ, जिसे आप शरणागति नहीं 100% कहते तब तक नहीं होगा। नहीं, 100% तो होगा नहीं महाराज। यस बिल्कुल, वी कैन ओनली कीप ट्राइंग, दैट्स ऑल। हाँ। जी महाराज, दैट्स ऑल। ठीक है। वही मैं सोच अच्छा। रहा हूँ, वी कैन कीप ट्राइंग। हाँ, कोशिश करते रह सकते हैं। हाँ। ठीक है महाराज जी, दैट्स ऑल महाराज। अच्छा। कुंडू, प्रणाम महाराज जी। कुंडू हो? यस महाराज। अच्छा। महाराज पहला सवाल तो डिस्कशन हो गया है कि व्हाई इट इज कॉल्ड कल्पतरु डे, दो he said that it is self revelation. Second question is, Swamiji says that it is difficult to understand and explain what it is to remain in Bhavamukha. And he goes on to explain how the apparent simple words of Thakur contain deep meaning and significance. Is this what is Bhavamukha? क्या है तुम्हारा? मतलब भावमुख है क्या वो? he said that it is difficult to understand, and then he says that ठाकुर की बातें जो है सिंपल बातें had deep significance. तो भावमुख का मतलब क्या यही है कि सिंपल बात भी? नहीं 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 नहीं, अरे ये तुम्हारा भावमुख है ये, कुंडू का भावमुख। हाँ महाराज, वही समझ ये में नहीं आता है एक सेंटेंस के बीच डीप मीनिंग नहीं। भावमुख यानी स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, समाधि की स्टेट जो होती है, समाधि का भावमुख। भाव, धारणा, ध्यान, समाधि होती है ना, तीन। हाँ महाराज। धारणा करना, उसके बाद में ध्यान, और ध्यान के बाद समाधि। हाँ। तो जो ध्यान समाधि का लेवल है, उसका जो माउथ है, यानी ओपनिंग ऑफ भावमुख और समाधि, ठाकुर जो है वो वैसे उस लेवल पे रहते थे हमेशा। नेक्स्ट मोमेंट ही विल गो इनटू समाधि। माँ जगदम्बा ने कहा कि अरे तुम क्या, माँ जगदम्बा हमेशा ठाकुर समाधि में डूबे रहेंगे। माँ जगदम्बा ने कहा नहीं नहीं, तुम समाधि में डूबे नहीं रहो, भावमुख में रहो। भावमुख में रखो ना, समाधि के भाव में रहो, समाधि के माउथ पे रहो, एंट्री ऑफ समाधि। ओके, इसका मतलब समाधि में चला गया तो आफ्टर दैट तो लय हो गया मन के, वो तो भाव में चले गए, भाव में चले गए। उसकी जो सोर्स है वो है। हाँ, उसके मुंह पे रहो। हाँ, शुरू जहाँ। अदरवाइज यू संसार में काम नहीं कर सकोगे तुम ना। संसार में तुमको करना है, अगर भाव में चले गए ना तो फिर तो इट इज यू आर बियॉन्ड लव। दैट इज द मीनिंग ऑफ समाज भावमुख। रिमेंबर, इट इज नॉट योर, जो तुम्हारा जो कहना है ना, वो तो क्या, वो दैट इज नथिंग, दैट इज इंटेलेक्चुअल। एक शब्द कहा, उसके पर डीप मीनिंग है। ओके, दैट इज इंटेलेक्चुअल पार्ट, दैट इज नथिंग, हैज नथिंग टू डू विद भाव। ओके महाराज, यस महाराज। Then next question, Maharaj. In the context of controlling lust, it is said that mental sin is no sin in Kali Yuga, and one should not be too concerned about occasional failing. But all our actions originate from the mind. If we do not consider, कौन बात कर रहा है भाई? आवाज कहाँ से आ रही है? Itu madam. हाँ
Maharaj, in the context of controlling lust, it is said that mental sin is no sin in Kali Yuga, and one should not be too concerned about occasional failings. But all our actions originate from the mind. If we do not consider mental sin seriously, won't it give way to licentiousness? वेरी करेक्ट। अरे ये तो थोड़े बहुत किसी को समझाने के लिए किया है। अच्छा महाराज। हाँ, बट टेक इट सीरियसली। ओनली थिंग इज कॉम्प्लेक्स नहीं हो जावे, इसलिए ये बात कही है कि थोड़ा बहुत मेंटल है तो कोई चिंता मत करना। अच्छा। बट यू हैव टू कंट्रोल इट। नो एक्सक्यूजेस। यस महाराज। अगर मन में विचार आता है तो जो साधक होता है वो कहता है राम राम, मेरे मन में क्यों विचार आए? मैं इतने साल से साधना कर रहा हूँ, अभी भी मेरे मन में विचार आ रहा है, अरे राम राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक्चुअल रियल साधक जो है वो जरा सी रे भी मन में से उठती है तो वो टॉलरेट नहीं करता। यू हैव टू बी मोर सेंसिटिव। ये तो लोगों को थोड़ा सा, ठाकुर ने कहा जो आए हैं संसार में रह रहे हैं, विषय में हमेशा पड़े हुए हैं, अरे कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, तुम फिजिकली तो कुछ कर नहीं रहे हो, अपने वाइफ से है, फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, मन में कोई उठ रहा है तो कोई बात। ये दैट इज वे इट इज बीन, बट देयर इज नो एक्सक्यूज। यस महाराज। ये पक्का यू हैव टू टेक अप सीरियसली। व्हाट इज दिस? यस। डोंट डू दैट, नो कॉम्प्रोमाइज। यस महाराज। यानी यहाँ तक होना चाहिए, इतने वर्ष हो गए हैं, तुम भक्त हो, अब अगर मन में विचार आएगा तो मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। दैट सॉर्ट ऑफ संपर्क होना चाहिए। फिजिकल तो हो गया, फिजिकल तो बुढ़ापा हो गया, अब क्या फिजिकल होता है, कुछ नहीं है, लेकिन मन की बात नहीं होना चाहिए। डोंट अलाउ इट। ठीक हुआ। यस महाराज। प्रणाम महाराज। ओके। आ जाओ दिलीप भाई। जी महाराज जी प्रणाम। दो हाथ हो जाएं। हाँ। My first question is, the master always taught that nobody's spiritual attitude of mind should be interfered with. इसका मीन क्या? Why Guru has no right to interfere our mind? He has right. हाँ, तो यहाँ पे जो नहीं, but he does not use the right. Why? जरूरत नहीं है, उससे बढ़कर नुकसान हो जाएगा। वो स्वामी विवेकानंद ने, हाँ, वो काली थे, उन्होंने बैठे हुए थे, उसको उन्होंने कहा स्पर्श करो मुझे। हाँ, तो उसका जो भाव जा वो नष्ट हो गया। वो तो भक्ति भाव से चल रहा था, उसमें ज्ञान भाव चला गया। श्री रामकृष्ण ने डांट लगाई कि क्या किया तुमने? वो तो भक्ति भाव से प्रगति कर रहा था, अब तुम सारा का सारा उसको नष्ट कर दिया। ओह यस। जरूरत होगी तो करेगा, नहीं करेगा क्यों करेगा? राइट, बराबर। सैकड़ों पाव थे, एक काली की उपासना कर रहा है तो करने दो बाबा। अब तुम कहो कि गुरु तो है, उसको वो दुर्गा के, वो अपने राम का भक्त करा सकता है उसको। हाँ। लेकिन नुकसान हो जाएगा ना, उसका तो भाव तो जन्म जन्मांतर का काली का भाव है, तो वो गुरु क्यों करेगा? उसमें पावर है, लेकिन क्यों यूज क्यों करेगा? जरूरत होगी तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बराबर महाराज जी। अब मेरा इसमें थोड़ा सा एक पूछना था कि मेरा एक भाव पर्टिकुलर इस पर है, तो गुरु टच करके मेरा वो भाव को ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाते? नहीं, ज्यादा बढ़ाने की बात दूसरी होती है। पर ये करते हैं कि नहीं, या करना चाहिए या नहीं? कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते। अब वो सहन नहीं कर सकेगा तो भाव तो बढ़ा दिया, लेकिन अभी तैयारी प्रिपरेशन तो है नहीं। हाँ। यानी इसलिए साधना में जो है ना, तुमने बाकी जो पूछे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इस प्रकार के कि पहले यम नियम आसन प्राणायाम करो, उसके बाद धारणा ध्यान समाधि। यहाँ पर विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व ये सब प्रिपरेशन जो है ना, बिना प्रिपरेशन के अगर कोई साधक आया और उसमें आपने वो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण की भक्ति बढ़ा दी, तो वो दिन भर कृष्ण कृष्ण चिल्लाता रहेगा। श्री रामकृष्ण ने कहता है अरे अरे क्या कर रहा है ये? वो क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कुछ इसी प्रकार का वो
अपने हृदय था ना, हाँ तो हृदय में एकदम भाव बढ़ गया था। जी तो हृदय कहने लगा, अरे अरे हम तो महान है, क्या कर रहे हैं रामकृष्ण, चलो हम ऐसा करें ऐसा करें। श्री हाँ रामकृष्ण ने कहा, अरे क्या कर रहा है रे, मेरे को तो बहुत भाव होता है, मैं तो इसको कंट्रोल करके रखता हूँ। तुम्हारा भाव बढ़ा दिया, तुम्हारी कृष्ण भक्ति है आज बढ़ा दिया। अरे तुमने तो कभी साधना की नहीं, अचानक बढ़ गया तो आप सारा आपका मामला खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लॉ खत्म हो जाएगा, जी सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो मथुर बाबू का हुआ था एक बार, जीवनी पढ़ो तो मालूम पता चलेगा। जी मथुर बाबू का भाव बढ़ गया, हाँ तो फिर श्री रामकृष्ण को आके कहने लगे श्री रामकृष्ण के पास कि अरे भाई क्या कर रहे हो, मेरा तो सब बिजनेस चौपट हो रहा है, मेरा एस्टेट देखना है मेरे को, और आपने इतनी भक्ति प्रेम की कृष्ण की भक्ति बढ़ा दी, तो मैं क्या करूंगा, बोलो काली की भक्ति बढ़ा दी तो क्या करूँ। तो गुरु डिसाइड करते हैं, अरे ये अभी तैयार तो हुआ नहीं है, यस वैराग्य तो आया नहीं है, और उसको भक्ति बढ़ा दी। जी बराबर हाँ जी महाराज जी बी वेरी केयरफुल, ये इम्पोर्टेंट जी पॉइंट है ना, समझते नहीं है हम, प्रिपरेशन नहीं करते हैं, विवेक वैराग्य शमदम इत्यादि की प्रिपरेशन नहीं होती तो प्रॉब्लम होती। जी yes. मेरा सेकंड क्वेश्चन है, we find his souls alone such as Lord Jesus, Chaitanya and others who sometimes gave assurances of this kind to some people to whom they give assurances. They say they give assurances to some people. अरे चैतन्य देव ने तो जगाई मगाई जो राक्षस जानवर जी। गुंडे थे ना, हाँ 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 उनको ठीक कर दिया था। जी जीसस क्राइस्ट ने तो कितने लोगों के पाप अपने ऊपर लिए थे, सूली पर उसी चढ़े चढ़े थे। श्री रामकृष्ण को कैंसर हो गया था हाँ लोगों का को लेने के कारण, एक ल्यूकोडर्मा वाला था, उसने श्री रामकृष्ण ने उसने कहा कि श्री रामकृष्ण के आप मेरे हाथ पे से हाथ बॉडी पे हाथ फेर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। श्री Yes. रामकृष्ण ने प्रेम से हाथ फेर दिया और उसके बाद सारा शरीर उनका जलने लग गया खुद का। बराबर जी जी तो ये तो महापुरुष होते हैं, ये सब करते हैं, कृपा करते हैं। बराबर जी महाराज जी। My next question, man finishes the experiences of, ये तो हो गया 10 lives हो गया। complete. हाँ हाँ हो गया। नेक्स्ट ये पांचवा भी महाराज हो जी यस, चौथे के अंदर मेरा प्रॉब्लम है पीपल केम एंड टच माय बॉडी आफ्टर कमिटिंग ऑल काइंड्स ऑफ सिंस एंड बिकॉज आउट ऑफ कंपैशन फॉर देयर सफरिंग्स I had to take upon myself the results of their evil actions. Now my question is, I understand certain sannyasis do not permit sadhak to touch their feet, and even they don't allow sadhak to come near them. ये इसी कारण बिल्कुल ठीक बाबा। आई डोंट गेट आउट ऑफ द रूम, बनारस के अपने गेट के बाहर भी नहीं निकलता हूँ मैं। बड़े अच्छे हैं हम, आते हैं संसार की क्या क्या बातें करते हैं यहाँ पे आके। हाँ तब बिल्कुल ठीक है, बराबर जी जब तक हम पक्के नहीं हो जाए ना तब तक हमको दूर रहना पड़ता है। अरे श्री रामकृष्ण ऐसे व्यक्ति कभी हाँ कभी कहते थे, आज सुबह से शाम तक इतने भक्त आए हैं कि आज मेरे को आज ध्यान ही नहीं ठीक से हो रहा। श्री रामकृष्ण जैसा व्यक्ति कह रहे ओके कि जी सुबह से, आज संडे छुट्टी का दिन है, सुबह से इतने लोग आए, इतने प्रणाम किया, ये किया, आज मेरा जो भाव है वो कितना डाउन हो गया है कि बस। श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति। बराबर जी महाराज। Now my next question, why have I not given my power of attorney to God? What shall I do when he is making me act thus? Why does he not change my mind? My question is, why God is not changing the mind? महाराज जी नहीं मेरा तुम समझे नहीं। वो क्या है कि हाँ। वो आदमी ने, मैंने शरणागति कर दिया, मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपना मुकदमा जो है वो हाँ। दे दिया है, यानी तुम जानते हो ना, लीगल हो, हाँ पावर ऑफ अटॉर्नी तो जानते हो ना तुम, जी जी बिल्कुल कि आपको भाई दिलीप भाई, ये ब्रह्मेशानंद ने कहा भाई कि मेरा जो भी है मैंने सरकार को जाके बोल दिया है कि ये दिलीप भाई जो है उसको मैंने पावर दे दिया है, वो मेरे बारे में जो करना है सो करेंगे। ये पावर ऑफ अटॉर्नी तुम समझते हो, ये तो बराबर लीगल चीज है। हाँ जी तो हाँ आदमी कहता है कि मैंने भगवान को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, अब मेरे को कुछ नहीं लेना देना, वो जैसा करे वैसा करे।
तो इतना आसान नहीं है ये कहने का। नहीं वो अरे पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, लेकिन खुद फिर भी मन वही कर रहा है, गंदा काम कर ही रहे हैं। अब नहीं वो मेरा कहेंगे कि भगवान को मैंने पावर ऑफ अटर्नी दिया, भगवान मुझे क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? हाँ ये मेरा सवाल है, ये मेरा हाँ, ये तो हो रहा है ना। हाँ ऐसा है ना कि भगवान कहते हैं कि अरे मैं तुमको अगर बदलूंगा ना तो तुम रोने लग जाओगे। खुद बदलना नहीं चाहते, दोष भगवान को देते हैं। जी खुद शराब पियेंगे और कहेंगे कि भगवान मुझे शराब पीने से नहीं रोकते। यार ये क्या बात, समझे? भगवान जी भगवान क्या करेंगे? वो बिना, इसलिए पावर ऑफ अटर्नी जो आदमी देता है ना, ये सबसे ऊंची चीज है। हाँ वो गिरीश चंद्र घोष ना, जी उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दी तो उसके बाद ठाकुर ने, उसकी ऐसी अवस्था हो गई थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकता था अपनी इच्छा से। जी तो ये कहते ना, कह रहे मैंने तो पावर ऑफ अटर्नी दे दिया है, अब मुझे भगवान मुझे क्यों नहीं करते? अरे ऐसा क्यों होता है क्या? जब करेंगे ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। दोष भगवान को देते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। नहीं हम करना चाहते हैं, इसीलिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, लेकिन क्या भगवान हमें इसमें मदद नहीं कर सकते? अरे कि यदि हमारा दिमाग बदल जाता है तो वो उस लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे कि नहीं? बिकॉज यहाँ पे लिखा है why देखो, have I not given सुनो my सुनो, हाँ, सुनो, बताता हूँ। जी ठाकुर ये भी बोलते थे कि अगर तुम एक कदम भगवान की ओर जाओगे तो भगवान तुम्हारी तरफ 10 कदम आएंगे, बराबर, है ना? जी बिल्कुल। अरे तो लेकिन एक कदम तो जाओ, हाँ वो भी नहीं करते। नहीं तो ये कदम में हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दी, अब हमको 10 कदम हमारी अक्ल सुधार दो। नहीं, ये थोड़ा होता पावर है ऑफ अटर्नी जिनको दे दिया ना, जिन्होंने हाँ, दे दिया, जी उनके लिए ठाकुर कहते हैं कि मैं तुम्हारा 10 कदम तुम्हारी तरफ जाता हूँ, बस लेकिन तुम एक कदम तो चलो। बराबर, मैं शराब पीऊंगा, भगवान क्यों नहीं रोकते? तो भगवान कहते हैं कि तुम एक बोतल पीते थे, अब एक कप तो, सिर्फ एक बोतल को तो कम करो भाई, एक कप कम तो करो। जी नहीं तुम कम करो, ये क्या बात? बराबर, जी अरे पावर ऑफ अटर्नी देने के बावजूद आपको एक कदम चलना पड़ेगा, तब भगवान 10 कदम आएंगे। बराबर बराबर। ये पर आप महाराज जी, मेरे को सिर्फ यही समझना था कि हमने पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे हिसाब से दे दी है, तो भगवान इसमें हमको इसके अंदर सहायता कर रहे हैं कि हाँ चल तू आगे चल, अब मैं तेरे पीछे पीछे हूँ, ये कर। ओ हाँ, बस ये लेकिन मेरा, तू चल तो सही बाबा, एक कदम तो चल। वो कोशिश करते हैं हम जी महाराज। हाँ। नाउ मेरा अब एक सवाल और है इसमें। It is only when the three things, namely our mind, words, and actions are inspired by the same feelings, that our words can touch others' hearts and raise similar waves of feeling there. My question is, in that case, nobody should console anyone's time. नहीं, ये नहीं, कंसोल हाँ, करो ना, अभी बात डिस्कस हो गया ये काम। हाँ डिस्कस हो गया। हाँ, लेकिन ऐसा है, ये मत समझो कि तुमने बहुत बड़ा काम किया। ओके जी जी, खुद Right. उसका, जब तक खुद तो उसका दुख अनुभव नहीं कर रहे हो ना, हाँ हाँ मुंह से सब बोल रहे हो। जी ठाकुर ने खुद का अनुभव किया था, उसको कहा था, खुद ही कहा था कि अरे मुझे भी हुआ था, पूरी कहानी है ना, ये बिल्कुल मुझे है। भी हुआ था। और तब वो आदमी कहता है कि देखो ठाकुर के कंसोलेशन से मेरे को कितनी शांति मिली है। हमारी सिचुएशन वो है नहीं, नहीं मतलब ये मैं, इसका मतलब ये कि कंसोल नहीं करना, चाहो कंसोल करो, लेकिन जानो कि उससे कितना होगा नहीं होगा कोई बात, लेकिन इसका मतलब ये है कि कंसोलेशन बंद करना ये पॉइंट नहीं है। ओके राइट। अच्छा, ये सेल्फ रिवीलेशन में मेरे 3 सवाल है। What more can I say of him whose greatness Vyas and Valmiki could not find words to express? How Girish Chandra Ghosh compared himself with Vyas and Valmiki. Vyas and
Valmiki were much prior to the birth of Sri Ramakrishna. अरे व्यास और वाल्मीकि किसका वर्णन नहीं कर सके थे? ब्रह्म का ना। हाँ, ब्रह्म का वर्णन व्यास वाल्मीकि नहीं, कोई भी नहीं कर सका था। जी, मतलब श्री रामकृष्ण है वो ही ब्रह्म, ओके, जी, वो ब्रह्म के अवतार हैं। वो कहने का अर्थ है उसका कि प्रभु आप तो ब्रह्म है, आपको व्यास और वाल्मीकि वर्णन नहीं कर सके तो मैं क्या करूंगा? तो वो ठाकुर को वो परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ एक रूप करके ये बात कही। बराबर, जी महाराज। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे महाराज जी समझ में आया। हाँ। The second है, why it is written self-revelation of the master or the bestowal of a freedom from fear on all devotees by revealing himself is more reasonable than Kalpataru. ये क्यों कहा गया महाराज? यानी इन्होंने is more reasonable यानी अभी वो डिस्कस तो हो गया ना। नहीं, पर ये नहीं बताया कल्पतरु से ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि कल्पतरु में तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो यानी उसके नीचे बैठो तो तुम अगर बुरा काम भी सोचो तो बुरा हो जाएगा, हाँ, अच्छा हुए तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे तो ठाकुर ने अच्छा ही किया, उन पर कृपा की, यस, उनको अभय प्रदान दिया, हाँ, उनको दर्शन दिया, दर्शन करवाए, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस करवाए, तो कल्पतरु से सुपीरियर हुआ ये चीज ना। यस यस महाराज जी, बिल्कुल जी, वेरी राइट। अब लास्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाई मास्टर इन एक्सटेसी प्लेस्ड हिज लोटस फुट ऑन हरचंद्र's head? Was Harchandra also experienced ecstasy simultaneously? कुछ लिखा नहीं है वहां पे, कहीं भी पता नहीं। हाँ, वो जी बराबर, कुछ नहीं मालूम हम लोगों को जी, ओके। अच्छा महाराज जी, अब एक सवाल मेरे का छोटा, अभी आपने डिस्कस किया पर मेरे को कंप्लीट क्लियर नहीं हुआ, परमिशन हो तो मैं पूछ लेता हूँ। My life is predestined. Can I change by my karma of this life? If yes, then it is for next life or for this life also? नहीं, सब इस लाइफ में। अरे आपको तो गरीब के घर में जन्म हुआ तुम्हारा, हाँ, यानी पूर्व जन्म के कारण गरीब के घर में जन्म हुआ जी, और संघर्ष करके आप पैसे वाले बने, तो ये आपने स्व प्रयत्न के कारण किया। प्री डिस्टिंड होता तो बैठे रहते, जी, क्या करूं, मेरे को तो यही है, खाना जो मिलेगा मिलेगा, मुझे तो भिखारी बनाया है, बैठे हुए हैं, लोगों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा, अपने सेल्फ एफर्ट के द्वारा आदमी जो है वो इस जन्म में राजा बन गया और खूब दान करता है, और दान करने का पुण्य होगा तो अगले जन्म में और भी बड़ा बनेगा। तो सेल्फ एफर्ट, प्री डेस्टिनेशन को लाभ पसंद ही नहीं करता हूं मैं ये सब। अच्छा, प्री डेस्टिनेशन क्या अरे जैन धर्म तो क्या कर्म को मानता है, लेकिन कितना पुरुषार्थ मानता है, करते हैं बोलो तो। कर्म को मानते हैं ना, जैन धर्म में तो बहुत कर्म के बारे में बहुत मानते हैं, जी जी, लेकिन तपस्या कितनी करते हैं? फिर बैठे तो नहीं रहते ना कि हमारे कर्म के फल के कारण है, ऐसा नहीं, बैठे तो खूब तपस्या करते हैं, हाँ, कठोर तपस्या करते हैं। क्यों? ये पाप कर्म हमारे जो काटेंगे, अगला जन्म शुभ करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, स्वरूप को जानेंगे। तो ये मैं इसीलिए बोलता हूँ ना कि प्री डेस्टिनेशन की बात मेरे को पसंद नहीं आती। अच्छा, अरे भाई मैं जन्म हुआ हूँ तो जन्म हुआ, जिस कारण से हुआ हूँ, अब मेरे हाथ में 100% मेरे हाथ में है। ओके, अगर यानी एक आदमी लंगड़ा भी तो होता है ना, वो भी पहाड़ चढ़ जाता है, जी, फिर यानी कैसा भी इनवैलिड पर्सन भी हो, लेकिन जीवन में सफल हो जाता है। हाँ, फिर अगर प्री डेस्टिनेशन करें तो कैसे काम चलेगा? बराबर जी महाराज जी, बस प्रणाम। ओके, ठीक है। जी, प्रणाम। तो आज शॉर्ट हुआ, आज 16, 17, 18 लोगों ने ज्वाइन किया है, बाकी 23 वगैरह होते हैं। कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, हम लोग सब कॉन्फ्रेंस में आज दूसरी जगह कल्पतरु में है। अरे आज तो कल्पतरु, हमने कल्पतरु का ही तो किया है, बढ़िया रहा प्रोग्राम। क्यों भाई? हाँ, महाराज, महाराज,
एक लास्ट में एक चीज पूछूं। हाँ आपने आपने उस टाइम में बोला था कि जैसे अद्वैत में भय नहीं रहता है, फिर आपने बोला भक्ति में भी भय नहीं रहता है, द्वैत में हाँ। भी भय नहीं रहता है। हाँ तो ये तो हुआ, इसके मतलब जो है ज्ञान योग में भय नहीं रहता है, भक्ति योग में लोग अभय हो जाते हैं। तो कर्मयोग जो करते हैं, कर्मयोगी भी अभय हो जाते हैं। तो तुम्हारा जो अद्वैत के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ मैं, आई एम ओनली टॉकिंग व्हेन ओनली अद्वैत इज नॉट देयर। ओके। अब जैसे बाकी जो लोग हैं वो उनके अलग अलग ढंग से कर्म के उसको दूर करने का आगे दे रहा, अरे भय दूर करने के और भी कई उपाय हो सकते हैं। अच्छा महाराज। बट मेरा जो आंसर था वो केवल अद्वैत के था। अद्वैत, अच्छा हाँ। उस बेसिस पे। हाँ। ठीक महाराज। अब ना तुम बोलोगे कि भाई राजयोग में क्या होता है, सो दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। यस महाराज, ओके। महाराज जी एक सवाल पूछते हैं, अब यदि नहीं है तो एक सवाल बोलो, और। पूछ लो। Who is the creator of my thoughts, feelings and emotions? Huh? Who is the creator? You yourself are there. तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार भरे हुए हैं। ब्रेन जो है ना, योर ब्रेन इज द क्रिएटर। उसमें बहुत सारे इंप्रेशंस पड़े हुए हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग द थॉट्स। But it is not Brahman. अब देखो, ब्रह्मन लाओगे तो फिर संसार में सब कुछ ब्रह्मन के कारण होगा। तुम्हारे पलक गिरना भी बंधन ब्रह्मन का है, बातचीत करना भी ब्रह्मन है, उठना बैठना ब्रह्मन है। संसार में अब तुम ये मिलाना चाहो, अपने आप को कंफ्यूज करना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है। कोई बोलेगा कि नहीं ब्रह्मन क्यों है, तो भगवान बोलो ना। ब्रह्मन तो कुछ नहीं करता, निर्गुण निराकार है। उसके बाद जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला जो भगवान है वो विचार करेगा। कोई कहेगा नहीं, अपने हृदय में तो आत्मा है, भगवान को क्यों लाते हो बाहर वाले को। हमारे हृदय में जो आत्मा है वही चैतन्य आत्मा है, वही सब प्रेरित कर रही है। तब हो जाइए कंफ्यूज, और क्या करेंगे। चार चीजें हो गई, ब्रह्म हो गया, ईश्वर हो गया, आत्मा हो गया और मन हो गया। अब ये चार चीजें हैं, उसमें से डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा आंसर अच्छा लगता है। नहीं पर ये तो कंफ्यूज हो गए ना। अब हम यदि आज मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, सुनो ये मान के चलो कि विचार मैं ही करता हूँ। मन में मेरे विचार आ रहे हैं, कोई बाहर वाला नहीं है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। अच्छा विचार है तो मैं जिम्मेदार हूँ, बुरा विचार है तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये फिलोसॉफिकल बात क्यों करते हो? सीधी डायरेक्ट बात यह है कि मेरे विचारों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं अपने मन से विचार करता हूँ। मेरे मन में अगर बुरा विचार आया तो मेरे मन से आया जी, मैं अपने मन को कंट्रोल करूँ। हाँ, ये सीधी बात हो गई। ओके। तभी फिलोसॉफी में जाने से क्या फायदा? जी बराबर जी। हाँ, ये मेरे पूर्व जन्म करके मेरे को ही अपने ठीक करना पड़ेगा, इसको नए जन्म में नया बनाना पड़ेगा। ठीक है जी महाराज जी, बिल्कुल ठीक महाराज। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम। नमस्ते नमस्ते।